Welcome, our listening friends. श्रोता मित्रों, आपका स्वागत है। We are delighted that you tuned in to this program. हमें बहुत खुशी है कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। We have been studying the miracles of the Lord Jesus Christ, हम प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का अध्ययन करते आ रहे हैं, especially those signs that were mentioned in the Gospel of John. विशेषकर वो चिन्ह जिनका जिक्र हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलता है। We have already seen 3 of those. हम इनमें से 3 को देख चुके हैं And today we're beginning in the 4th one. और आज हम चौथे से प्रारंभ कर रहे हैं। During World War II, the German forced many 12 and 13-year-old boys into a junior Gestapos. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेनाएं 12 या 13 साल के छोटे लड़कों को जबरदस्ती पकड़कर कैद कर लेती थी। These boys were treated very harshly and were forced to perform inhumane jobs. इन लड़कों के साथ बड़ी निष्ठुरता का व्यवहार किया जाता और उनसे अमानवीय काम करवाए जाते थे। When the war ended, most of these boys had lost track of their families. जब युद्ध खत्म हुआ तो इनमें से अधिकतर अपने परिवारों को भूल चुके थे। Many of them wandered around with no food or shelter. उनमें से अधिकांश बिना भोजन और आश्रय के इधर-उधर भटकते रहते। Part of the aid program to post-war Germany was the establishment of tent cities for these boys. जर्मनी के युद्ध पश्चात सहायता कार्यक्रम में इन लड़कों के लिए शरणार्थी नगर बनाना भी एक भाग था। In these tent cities, इन तंबू घरों में doctors and psychologists were deployed to work with these boys to help restore their mental and physical health. डॉक्टर और मनोचिकित्सकों को नियुक्त किया गया कि वो इन लड़कों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का इलाज करें। One of the things that baffled these professionals was this. इन डॉक्टरों की एक परेशानी ये थी, Many of these boys would wake up in the middle of the night screaming in terror. कि इनमें से कई लड़के आधी रात को आतंक या भय के मारे चीखते हुए नींद से जाग जाते थे। Finally, one doctor had an idea of how to handle their fear. अंततः एक डॉक्टर को उनके डर से निपटने का एक विचार सूझा। First, he fed the boys a large meal at night. पहले उसने लड़कों को रात को भर पेट खाना खिलाया। Next, he put a piece of bread in their hands, which they were told to save until morning. फिर उनके हाथों में एक एक ब्रेड का टुकड़ा दिया गया जो उन्हें कहा गया कि वो सुबह तक बचा कर रखें। The boys then slept soundly. फिर ये लड़के गहरी नींद से सोते थे। Why? क्यों? Because after so many years of hunger, they finally had the assurance of food for the next day. क्योंकि भूख के इतने वर्षों के बाद आखिर उन्हें अगले दिन भी भोजन मिलने का विश्वास था। The number one cause of fear is fear of the future. डर का नंबर 1 कारण है भविष्य का डर। The number one cause of anxiety in the world is what tomorrow will hold. संसार में चिंता का नंबर 1 कारण यह है कि पता नहीं कल क्या होगा। The number one cause for worry is what will happen to me and my family. घबराहट का नंबर 1 कारण यह है कि मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। The number one cause for sleepless nights is the thought, will I make it another day? नींद रहित रातों का नंबर 1 कारण ये विचार है कि क्या मैं एक और दिन देख पाऊंगा। John the Apostle was under the leadership of the Holy Spirit when he recorded his gospel. प्रेरित यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना सुसमाचार लिखा। In chapter 6 we find the 4th sign that Jesus performed. 6 अध्याय में हम यीशु के चौथे चिन्ह को देखते हैं And it was recorded for our benefit. और ये हमारे लाभ के लिए यहाँ दर्ज किया गया है। He recorded this sign to assure those who belong to the Lord Jesus Christ उसने ये चिन्ह उनको निश्चित करने के लिए दर्ज किया जो प्रभु यीशु मसीह के हैं। John assures us that Jesus is not only able to change water into wine, यूहन्ना हमें आश्वासन देता है कि यीशु न केवल पानी को दाखरस में बदल सकता है, John assures us that Jesus is not only able to heal the dying body, यूहन्ना हमें निश्चित करता है कि यीशु न केवल मरती हुई देह को ही चंगा कर सकता है, John assures us that Jesus is not only able to heal a man who was paralyzed for 38 years, यूहन्ना हमें विश्वास दिलाता है कि यीशु न केवल 38 वर्ष के लकवे के रोगी को ही चंगा कर सकता है, but John also records some words to tell every believer in Jesus Christ the following thing. परंतु यूहन्ना यीशु मसीह के हर विश्वासी को ये बताने के लिए कुछ शब्दों का उल्लेख भी करता है That your anxiety is baseless. कि तुम्हारे फिक्र का कोई आधार नहीं है।
that your worry is groundless, कि तुम्हारी चिंता का कोई आधार नहीं है, that your fear is unnecessary. कि तुम्हारा डर अनावश्यक है, And worry, anxiety, and fear are not honoring to God. और चिंता, फिक्र और डर से परमेश्वर का आदर नहीं होता। Why? क्यों? Because it is God who gives you your food and not the government. क्योंकि आपको भोजन देने वाली आपकी सरकार नहीं है, बल्कि परमेश्वर है। It is God who holds your future and not your employer. क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, आपके मालिक के हाथ में नहीं। It is God who prospers you when you follow His stewardship principles. परमेश्वर है जो आपको समृद्धि देता है जब आप उसके भंडारीपन के नियमों को मानते हैं। It is God who blesses you today and blesses your tomorrow. परमेश्वर ही है जो आपके आज और कल को आशीषित करता है। It is the Lord Jesus Christ to whom you should look and not someone else. प्रभु यीशु मसीह है जिसकी ओर आपको देखना चाहिए, ना कि किसी मनुष्य की ओर। Let's look together at the scripture in John chapter 6 verses 1 to 14. आइए मिलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 1 से 14 पदों को देखते हैं। इन बातों के पश्चात यीशु गलील की झील तिब्रियास के उस पार चला गया, और एक विशाल भीड़ उसके पीछे चल रही थी, क्योंकि वे उन आश्चर्य कर्मों को देखते थे जिन्हें वह बीमारों पर करता था। यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने शिष्यों के पास बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक विशाल भीड़ को अपने पास आते हुए देखा, तो फिलिप्पुस से पूछा, इनके भोजन के लिए हम कहां से रोटी मोल लें? वह उसे परखने के लिए यह कह रहा था, क्योंकि वह समय जानता था कि क्या करने को था। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की भी रोटियां उनके लिए पर्याप्त ना होंगी कि प्रत्येक को थोड़ी थोड़ी मिले। उसके चेलों में से एक अर्थात शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस स्थान पर बहुत घास थी, इसलिए पुरुष जो गिनती में लगभग 5000 थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। उसी तरह मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी नष्ट ना हो। इसलिए उन्होंने उसे बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे 12 टोकरियां भरी। जब लोगों ने उस आश्चर्यक्रम को देखा जिसे उसने किया था, तो उन्होंने कहा, सचमुच ये वही नबी है जो जगत में आने वाला था। Here at this particular time in Jesus' earthly life, we find him to be at the peak of his popularity. यहां यीशु के धरती के जीवन के इस खास समय में हम उसे लोकप्रियता के शिखर पर पाते हैं। Here we find Jesus to be followed by multitudes of thousands, यहां हम हजारों लोगों की विशाल भीड़ को यीशु के पीछे आते देखते हैं, albeit following him not out of conviction, यद्यपि वो मन की दृढ़ता की वजह से उसके पीछे नहीं चल रहे थे, but out of curiosity and self-interest. परंतु उत्सुकता और अपने फायदे के कारण। In verse 2, you find that the perfect tense was used 3 times. 2 पद में आप पाते हैं कि पूर्वकालिक वाक्य 3 बार इस्तेमाल किया गया है। The crowd kept on following Jesus भीड़ यीशु के पीछे लगी रही, because they continually saw the sign, क्योंकि वो निरंतर चिन्ह देख रहे थे, and he habitually healed the sick. और वो बीमारों को चंगा करता था। Now, John does not record many of these signs. अब यूहन्ना ऐसे अधिक चिन्हों का उल्लेख नहीं करता, He only gives us a sample of each. वो हमें हर चिन्ह का मात्र नमूना दिखाता है। Why? क्यों? That you and I may believe in him, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास लाएं, so that you and I may put our trust fully in him, ताकि आप और मैं अपना पूरा भरोसा उस पर रखें, so that you and I would cast all our cares upon him. ताकि आप और मैं अपनी सब चिंताएं उस पर डाल दें। But the crowd did not understand the significance of this particular miracle. परंतु भीड़ इस खास आश्चर्यक्रम या चमत्कार के महत्व को नहीं समझ पाई। Many people don't understand it today, nearly 2,000 years later. अधिकांश लोग आज 2000 साल बाद भी इसे नहीं समझते हैं। Most of the witnesses thought that Jesus was very clever magician, but not the promised Messiah. अधिकतर चश्मदीद ये सोचते थे कि यीशु प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह नहीं, परंतु कोई चतुर जादूगर है। Anyone who could provide them with food for their bodies got their vote. जो कोई भी उन्हें उनकी देह के लिए भोजन देता वो उसी की तरफ हो जाते। These folks were following Jesus only because their stomachs got filled. ये लोग यीशु के पीछे केवल इसलिए चल रहे थे क्योंकि इनका पेट भर रहा था। In verse 66 of chapter 6 of the Gospel of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 66 पद में,
When Jesus challenged them spiritually, many of them left him. जब यीशु ने उनको आत्मिक रूप से चुनौती दी तो उनमें से बहुत सारे उसे छोड़कर चले गए। It says, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. लिखा है इसके बाद उसके कई शिष्य वापस चले गए और फिर उसके पीछे ना आए। They disappeared as fast as they could. वो जितना जल्दी हो सकता था भाग गए। My listening friends, please notice very carefully. मेरे श्रोता मित्रों कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने। Although Jesus knew their ulterior motives, he had compassion on them anyway. यद्यपि यीशु उनके बाहरी उद्देश्यों को जानता था, उसने तो भी उन पर दया दिखाई। He realized that they had gone a whole day without food. उसे पता था कि उन्होंने पूरा दिन खाना नहीं खाया है। Even beyond that, Jesus saw their spiritual need. बल्कि इससे भी परे यीशु ने उनकी आत्मिक जरूरत को देखा। He saw them as sheep without a shepherd. उसने उन्हें बिन चरवाहे की भेड़ों के रूप में देखा। They were like the paralyzed man who thought that his healing was in the water of Bethesda and failed to recognize the real healer. वो उस लकवे के रोगी के समान थे जो ये सोचता था कि उसकी चंगाई बेथेस्दा के जल में है और असल चंगा करने वाले को वो नहीं पहचान सका। The crowd had failed to understand their own scripture. भीड़ उनके अपने वचन को नहीं समझ सकी That just as God provided their forefathers manna in the wilderness, कि बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्जन प्रदेश में परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को मन्ना खिलाया, when the Messiah came, he was going to provide them with the spiritual food. कि जब मसीह आया तो वो उन्हें आत्मिक भोजन देने जा रहा था। That when God appears as flesh and bone, he will feed them spiritually. कि जब परमेश्वर देह में प्रकट होगा तो वो उन्हें आत्मिक रूप से रजाएगा। They had failed to comprehend the promises of Isaiah chapter 1 verse 19 and Ezra 9:12. वो यशाया की पुस्तक 1 अध्याय के 19 पद और एजरा की पुस्तक 9 अध्याय के 12 पद को समझने में नाकाम रहे। If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. यदि तुम तैयार रहो और आज्ञा पालन करो तो तुम देश का उत्तम फल खाओगे। According to the teaching of the Old Testament, पुराने नियम की शिक्षा के अनुसार eating and drinking and joy was equated with God's blessings and God's presence. खाना पीना और आनंद मनाना परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के बराबर था। Let us listen to Deuteronomy chapter 8 verse 9. आइए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय के 9 पद को सुनते हैं। उसने उसके सिर पर पगड़ी भी रखी और पगड़ी के सामने स्वर्ण चक्र को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। In Nehemiah 9:36 tells us, और नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय का 36 पद हमें बताता है, देख आजकल हम दास हैं, हाँ इसी देश में दास हैं, जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया था कि इसकी उत्तम उपज में सिखाएं। here scripture is telling us that food and eating are associated with God's blessings of his people. यहाँ वचन हमें बता रहा है कि भोजन और खाना पीना परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी आशीषों के साथ जुड़ा है। So when God comes in their midst in fulfillment of the messianic promises, they fail to recognize him. तो जब मसीह की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए परमेश्वर उनके बीच में आया तो वो उसे पहचान नहीं पाए। Let's get back to the miracle itself. आइए आश्चर्यक्रम पर ही गौर करते हैं। As the day wore on, the disciples began to panic. जैसे दिन ढलता गया तो शिष्य घबराने लगे। My listening friends, I want to tell you something very important. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। We always worry ourselves sick regarding things that only God can do. हम हमेशा उन बातों की चिंता करके बीमार हो जाते हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। So did the disciples. ऐसा ही शिष्यों ने किया। Master, they said, it is getting late. Send them away. प्रभु, उन्होंने कहा, अंधेरा हो रहा है, उन्हें भेजा जाए। There were about 14 neighboring towns in that area. Each had a population of about 15,000 people. वहां उस क्षेत्र में 14 पड़ोसी नगर थे। हर नगर में करीबन 15,000 लोग रहते थे। In effect, the disciples were saying, तो असल में शिष्य कह रहे थे, send them away so that they can get to the market and get food before the shopkeepers close for the night. उन्हें विदा कर ताकि वो जाकर बाजार से भोजन मोल लें, इससे पहले कि दुकानें रात के लिए बंद हो जाएं। Jesus suggested that the disciples feed the crowd in order to test the disciple. यीशु ने शिष्यों से कहा कि वो ही भीड़ को भोजन दें और ऐसे उसने उन्हें परखने के लिए कहा था। And Jesus encountered a very interesting reaction, to say the least. और कम से कम यीशु को बहुत ही दिलचस्प प्रतिक्रिया तो मिली। And I want you to tune in next time so I can tell you more about it.
और मैं चाहता हूं कि आप अगली बार भी हमारे साथ सम्मिलित हों ताकि मैं आपको इस प्रतिक्रिया के बारे में और अधिक बता सकूं। I want you to see if you can recognize yourself in one of these reactions. मैं चाहता हूं कि आप देखें कि क्या आप इन प्रतिक्रियाओं में से किसी के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। Until then,